Hey everybody, in this episode of the UNS podcast, we are joined by Shweta Goenka, who is a lifestyle trainer and a school counselor. In this episode, we talked about importance of school counselor. School counselor play a very important role in early stage of students' life. If you are a parent or somebody who is running educational institute, this episode may help you to fine-tune your decisions, to hire somebody, especially a psychologist, to improve the student capacity, improve the student mental health. School counselor play a very important role in the early stage of students' life that can act as a shield of their base of their life. Hey Shweta, how are you? Hi, Shang. I'm fine. How about you? Good, good, good. So we are going to discuss today a lot of things about school counselors. So let's Yes. start with what is the importance of a school counselor in schools, especially. Ishan, thank you for asking this question. It is so very important to know that why school counselors are important. So I remember when we were growing up, I've started from a very best of the schools when I was studying. So there we did have a school counselor, but will you believe that we never saw her? Why? Because she was only concerned with children who were having issues like dyslexia, which is a part of learning disability, or ADHD. Apart from that, we never had any interaction with her. But now you see so many cases coming up in school. So, Ishank, I would like to start by saying that as a school counselor, I've seen, especially the middle years children, being faced bullying in their classrooms or sexual abuse. This is actually the fact that children are uh, being sexually abused from their friends or elders in the seniors in their classrooms or somebody who is known to them, so they are facing that, right? So now when I was talking to, and as counselors also, you have to keep yourself updated. So when I was going to schools and talking about that, do we have POXO program in our school? So many of the school really don't know what POXO actually is, right? So as school counselors, we keep updating the teachers, we keep supporting the parents and even the students of whatever crisis or whatever emotional needs they may be having, we do support them. Totally understandable. Many schools don't even know what exactly well-being importance feels like, how children are dependent emotionally on their well-being, nature, for example, friends, families, and teachers. Many students are still finding emotional support systems around them, and psychologists can play a very important role of giving them that emotional support plus that actual realization that this is real. And yeah, many schools are now thinking and planning and even hiring many psychologists in their teams so that Right. their school can grow. Right. So when we talk about school counselors, you also stated that you never saw school Hmm. psychologist in your life when you were in school, right? So when these kind of things happens, can we say that there is something known as dark side of school psychology, the school psychologist? For example, I personally saw when we were in school, जब खेलने जाना होता था ना स्पोर्ट्स की क्लासेस होती थी मैथ्स टीचर आके कभी स्पोर्ट्स का क्लास ले लेती थी राइट Hmm. and then when we grow when we were in 11th and 12th तब ऐसा होता था कि कुछ क्लासेस जो कि मिसलिनियस होती थी या फिर ऐसी क्लासेस जो कि जिनका सिलेबस खत्म हो जाता था वहां पे बचे हुए सिलेबस की क्लासेस लगती थी प्लस
कभी राइट। कोई टीचर एब्सेंट होती तो सब्स्टिट्यूट लगता था। सब्स्टिट्यूट हमेशा उन टीचर्स का लगता था लाइक म्यूजिक, स्पोर्ट्स। फिर काफी हम्म। ऐसे स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट आर वन ऑफ दैट कैटेगरी जिनकी क्लासेस नहीं होती, उनके पास फ्री टाइम होता है, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन में तो सब्स्टिट्यूट लगा दिया जाता है। तो एब्सोल्युटली। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको रीच आउट करना चाहते हैं, वो वहां पे दिखते ही नहीं है। हम्म। हम्म। Right. So what do you want to say about it? Like it is actually true, or I'm just Yeah. making some things. Yeah. Yeah, Ishan, so what you're saying is absolutely true. So many of the school counselors are given substitutions. Teacher absent to ab jao. And they construct it so well that we are sending counselors to observe the class. So, this is one of the opportunities where you will be observing the children, or, you can have a look at their notebooks, talk to them, do whatever. But, this is the opportunity. Make a report of the same and discuss with us. So, and apart from substitutions, you would not believe, Ishank, that usually most of the schools they only hire one counselor for the entire group. I mean, from pre-nursery to grade 12, there is only one counselor. And can you imagine each grade, each level experience different concerns? So, for example, children who are in the younger age group, pre-primary and primary, will have different concerns. Separation anxiety ho sakti hai, difficulty with academics, right? So I would like to discuss a case over here. So once there was a couple, unke do bacche the child was in grade 2. So they were having marital issues and were in the verge of a divorce, right? So now what was happening? Conflict ki wajah se the child was reaching school day late every day. ठीक है, टीचर अब पनिश करती थी बिकॉज बाकी बच्चे भी लेट आना शुरू करेंगे, राइट? सो टीचर at her end she had to do this so that others don't take advantage of the same. But what was the child's fault? पेरेंट बोलते थे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फादर छोड़कर आते हैं स्कूल। मदर बोलती थी मैं टिफिन पैक कर रही हूँ, फादर जाएगा। फादर बोलता था मुझे तो बच्चे चाहिए ही नहीं, मदर इज गोइंग टू टेक द कस्टडी। तो मैं क्यों करूं? इस चक्कर में बच्चा हर रोज लेट आता था, right? So now as a counselor I do not have to support this late coming also, ठीक है? ना ही बच्चे को हर रोज पनिशमेंट मिले, वो भी ठीक नहीं है। So then you have to change the dynamics accordingly. So I took a group session with a class and told them that this child comes to me daily, first to school, in my room he comes daily, and then he will be sent to his class. कुछ इस तरीके से करके हमें मॉड्यूलेट करना पड़ता था. So now talking back again about the dark side of being in schools, you have to handle so many things. मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं मैम आप हमारी काउंसलिंग कर दो, दिस स्पेशली दिस केस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप हमारी काउंसलिंग कर दो। बट आप स्कूल में बुला के यू कैन डिस्कस अबाउट द चाइल्ड एंड द इम्पैक्ट दैट द पेरेंटिंग स्टाइल इज, द टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल दैट यू हैव अडॉप्टेड, उसके बारे में वी कैन डिस्कस एंड नॉट अबाउट योर ओन पर्सनल थिंग्स, राइट? सो दैट्स द डिफरेंट एरिया। सेकेंडली डाउन साइड और होती है कि आपको क्या है, अलग अलग इश्यूज देखने हैं, मिडल के अलग इश्यूज होते हैं, बुलिंग हो गई। सो द हायर ग्रेड्स दे आर गोइंग टू डिफरेंट कंसर्न्स, इट कुड बी रिलेशनशिप इश्यूज, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू देयर करियर चॉइस, हमें क्या करियर ऑप्शन लेना है। सो इमेजिन one counselor dealing with all sorts of cases, plus you are given substitutions, plus if there is any event in school you have to take part in that, and जो भी उसकी duties होती you have to take care of that, you have to maintain all the records, you have to meet parents, you have to sensitize teachers on different topics. और चीजें क्या होती है, कुछ भी क्लास में लेट्स से if two children are fighting, चलो जी go to the counselor, indiscipline वाले issues भी आते हैं. So what I'm trying to say is even for the tiniest or the smallest of the issues, school counselor is going to handle each and everything. तो जो एक्चुअल में जेन्युइन जहाँ पे सपोर्ट चाहिए होता है, वी आर नॉट एबल टू गिव दैट. राइट। साथ में एक और मेजर इशू है प्राइवेसी का। फॉर एग्जांपल, हम्म. इफ आई एम अ चाइल्ड, इफ आई वांट टू गो टू अ स्कूल काउंसलर, उनके केबिन तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल है मेरे लिए। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 10 बातें मेरे सिर पे चलनी है कि जो मैं बोलूंगा स्कूल काउंसलर से, वो जो मेरे बराबर में बैठा है और जो टीचर है शायद उन्हीं के बारे में है।
मैं पब्लिकली वो चीज नहीं बोल सकता। या फिर अगर मैं बोलूंगा इन लोगों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? या फिर अगर किसी ने इन लोगों को बता दिया तो शायद ये मेरी और बुलिंग करेंगे। अगर मैंने टीचर के बारे में ये चीज स्कूल काउंसलर को बता दी और वहां पे और टीचर्स बैठे होंगे तो मेरे गॉसिप्स ना बन जाए। तो ऐसे राइट। बच्चे काफी फील करते हैं, बट बच्चों की प्राइवेसी भी देखनी पड़ती है। या फिर इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। इकोसिस्टम नहीं है। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में होता क्या है, देयर इज अ विंग और अ ब्लॉक। काफी कम में ब्लॉक्स और विंग्स होते हैं, बट काफी में सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्लासरूम या एक केबिन मिल जाता है स्कूल काउंसलर्स को, जो आपको वॉक करके ही जाना पड़ता है और टीचर्स के केबिन से, राइट? हम्म। हम्म। एंड many teachers and many other students can visibly see it that hey, ये school counselors के पास किया है। And many schools and universities are still register based, so many students and many teachers can look up to that register कि अच्छा ये बच्चा आया था। It can easily be automated through laptop and your particular tech, right? जहाँ पर आप थोड़ी हम्म। प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो। हम्म। HIPAA कंप्लाइंट है, डेटा प्राइवेसी की बातें होती है मेंटल हेल्थ के अंदर, बट द लीस्ट इम्पोर्टेंस जिसे दी जाती है वो स्कूल काउंसलर्स एंड काउंसलिंग दैट इज हैपनिंग इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, व्हाट आई पर्सनली फील। सो हम्म। हम्म। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? राइट। सो ईशान, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अभी क्या है ना, काउंसलर ऑलमोस्ट हर स्कूल में है। इट हैज बिकम मैंडेटरी फ्रॉम सीबीएसई एंड राइट। तो अब क्या होता है, काउंसलर अपने रूम तक लिमिटेड नहीं रहता। So we take life skills sessions and it starts from the primary classes. Grade 1 से ही life skills लेना शुरू कर देते हैं. And usually counselors are asked to take those classes. तो जब counselors हर रोज हर क्लास में जा रही है, so each and every child is aware कि यहाँ we have a counselor. Who is a counselor? काउंसलर से हम अपने मन की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं. इट कुड बी academics, it could be about home, it could be about any friend. कुछ भी है, there is anything जो हमें लगता है हम अपने फ्रेंड से या टीचर से अभी नहीं डिस्कस कर पा रहे, वी कैन डिस्कस दैट विद हर। तो वो अब एक ओपननेस आ रही है कि बच्चे एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते कि हाँ, ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू अ काउंसलर। बट येस, व्हाट यू आर सेइंग, लेट्स से द चाइल्ड इज इन ग्रेड 8 एंड वांट्स टू डिस्कस अबाउट हिज फ्रेंड हु इज बुलिंग हिम। ठीक है, तो वो हो सकता है, हाँ, वो डरते डरते है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन इफ द चाइल्ड इज कमिंग टू मी एंड डिस्कसिंग अबाउट बुलिंग, तो मैं जाकर कुछ तो दूसरे बच्चे से बात करूंगी, राइट? आई विल बी टॉकिंग टू द कंसर्न टीचर, हिज क्लास टीचर, एंड इफ रिक्वायर्ड इवन विद द प्रिंसिपल। ठीक है, हम सबको एक लूप में रह के चलना होता है, काम करना होता है। सो नाउ इन दैट केस व्हाट वी डू, बिकॉज हम ऑलरेडी हर क्लास में जाते हैं, हर बच्चे को जानते हैं, सो इन अ वे वी विल पुल आउट द चाइल्ड फ्रॉम द क्लास। ऐसे सबके सामने एड्रेस नहीं कर लेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द इशू आल्सो, व्हाट द इशू एक्चुअली इज। तो हम अलग से बच्चे को बुलाएंगे ताकि सबको भी ना पता चले कि ये बच्चा काउंसलर के पास गए क्योंकि इसने बुलिंग की है, राइट? सो वी ट्राई आवर बेस्ट कि वो विद इन अ रूम सब कुछ सेटअप हो जाए। इन केस लगता है कि नहीं, वो फिर भी आगे चलता जा रहा है, देन टू टेक द नेक्स्ट स्टेप जहां पे वी विल इन्वॉल्व पेरेंट। हम ऐसा कुछ नहीं, अभी ट्राई आवर बेस्ट टू अवॉइड कि क्लासरूम में सबके सामने जाकर ये चीज एड्रेस करी जाए, राइट? सो लेट अस से ये वाली चीज होती, पूरी क्लास ही इस चीज में इन्वॉल्व है, देन यस वी टेक अ ग्रुप सेशन, पूरी क्लास का एक साथ होगा, राइट? बट ये चीज हो रही, डेफिनेटली वी डू इन्वॉल्व द पेरेंट ऑल्सो। सो जैसे अब एक एक केस उससे मुझे याद आता है। सो देयर वाज वन चाइल्ड हु वाज इन ग्रेड 6 and he was sharing because I once took a session on child abuse with all the grades. So he shared that one of my cousins was sexually abusing me. ठीक है, नाउ आई एम इन ग्रेड 6, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस इज, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था, आई वाज जस्ट 5 or 6 years ओल्ड, राइट? एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग विद यू क्योंकि आपने मुझे बताया कि ये इस बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है, किसी को नो बोलना जरूरी है, इवन इफ ही इज आवर elder brother, sister, any other family member, right? So he discussed that. Now when the child has discussed this, इट इज इम्पोर्टेंट कि हाँ, हम पेरेंट को भी ये बात बताए, बिकॉज ये उनकी फैमिली मैटर था। द एल्डर कजन वॉज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल अब्यूज। तो पता होना चाहिए कि पेरेंट भी ध्यान रखें।
सो वो वाली चीज जो आपने बोला वो अब इतना नहीं है कि सब मजाक उड़ाएंगे. चिल्ड्रन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत ओपन अप हो गए हैं. दे इजीली कम टू अस. राइट, एंड इवन स्पेशली काफी स्कूल्स जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के अंदर है, उनमें आज भी रिवर्स मैकेनिज्म चलता है. रिवर्स मैकेनिज्म मींस कि फॉर एग्जांपल इफ somebody is bullying someone, like if a student is bullying another student, वो पब्लिकली उसे बुला के ह्यूमिलेट करते हैं. हम्म. ताकि देयर थॉट प्रोसेस इज कि अगर अगर इसे सबके सामने ऐसा मैंने बोल दिया, इसको सबके हम्म. सामने मैंने ऐसा लाइक बता दिया, मैं सबके सामने हम्म. इनको लाइक हाथ उठाया या फिर जस्ट स्कोल्डेड हिम, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि बाकी बच्चों को एक लेसन मिल जाए सो कॉल्ड कि ऐसा नहीं करना है. राइट. हम्म. सो आज भी काफी जगह ऐसे चलता है. आई जस्ट वांट यू टू पुट लाइट ऑन इट कि हाउ इट इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ प्लस वेल-बीइंग ऑफ अ स्टूडेंट. हम्म. ओके सो सी अब क्या है, बहुत इसमें रिसर्च भी हुई है एंड अब देखा भी जा रहा है. मारने से कुछ नहीं होता. चाइल्ड में सप्रेस हिम्स फीलिंग्स हिज बिहेवियर फॉर सम टाइम, बट अल्टीमेटली वो सोल्यूशन नहीं है. मारने से तो कुछ हो नहीं रहा है. ठीक है वो थोड़े दिन हो सकता है डर के अच्छा बिहेव कर रहा है, जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है वैसा वो परफॉर्म कर रहा है, बट वो रियली सीख नहीं रहा है कि मैंने गलत क्या किया था. मारने से ही हैज नॉट लर्न दैट. सो एज साइकोलॉजिस्ट हम स्कूल में अब यही, इवन आपने भी अब सुना होगा, हार्डली कोई टीचर्स है जो अब फिजिकल पनिशमेंट में अपने आप को इंडल्ज करती हैं. एट द मैक्स हाँ ये हो सकता है दे मे बी रेजिंग देयर वॉइस, फॉर्म होती है, बट दिस इज द लीस्ट थिंग दैट दे आर डूइंग नाउ. अच्छा अब क्या हो रहा है ना, अब ऐसे केसेस में वही हो रहा है, टीचर सेंड द चाइल्ड टू अस कि ये सब चीजें हो रही हैं, वी डू नॉट वांट टू indulge in such behavior. So you see what is the best solution in this case. तो हाथ उठाना ये सब करना नहीं. स्कूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. इवन प्रिंसिपल्स, अब तो बहुत लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब लोग ये देख रहे हैं. सो अब टीचर्स की जॉब स्टेक पर है अगर ऐसा कुछ होता है. Right, right, right. Plus, let's roll back to the importance of school psychologist or a school counselor. So what हम्म. is your daily routine in schools? करते क्या हो exactly? Psychologist जो schools में होते हैं, school counselor, उनकी डे हम्म. टू डे जॉब प्रोफाइल क्या होती है? राइट. सो सी हमारा टाइम टेबल पूरा स्केड्यूल्ड होता है. सो जो भी हम जिस भी लेवल के काउंसलर है विंग के, सो प्राइमरी, मिडिल एंड सीनियर लेवल, तो हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ होता है. सो उसमें सब कुछ डिफाइंड है. हमें कब कब इंडिविजुअल सेशंस लेने हैं. इंडिविजुअल सेशन में द चाइल्ड विल कम इन आवर रूम एंड वी विल टेक द सेशन अकॉर्डिंग टू हिज कंसर्न्स. नंबर टू, हमारी लाइफ स्किल्स क्लासेस भी होते हैं. तो लाइफ स्किल्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, कि क्यों आपको हेल्प करनी चाहिए, व्हाई यू शुड बी काइंड टू अदर्स, राइट. सो if others are not supportive of you, let's say as a child I'm a very shy child, okay मुझे किसी को कुछ बोलना है, I want to whatever food they are eating I want to eat that also. तो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो. वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, कि ना एग्रेसिव होना आपका सोल्यूशन है, ना ही बहुत ज्यादा पोलाइट होना. यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस. वो क्या राइट बैलेंस है, असर्टिव कैसे होना है. सो वी टॉक अबाउट सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बात करते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम लाइफ स्किल्स हम SEL क्लासेस लेते हैं, विच इज सोशल इमोशनल लर्निंग. अब सोशल इमोशनल लर्निंग में क्या होता है, हम स्कूल में तो कुछ भी नहीं पता था, लाइफ स्किल्स भी नहीं हमारा होता था. सो इन दिस वी टॉक अबाउट, सी ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशंस. जब हम छोटे थे क्या बोलते थे, गुस्सा मत करो, गुस्सा करना बहुत ही गलत बात है, गुस्से को एकदम नेगेटिव इमोशन का नाम दिया जाता था, राइट. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट इमोशंस, सारे इमोशंस है, हम सब टाइम टू टाइम डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करेंगे ही. व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो इज हाउ यू शुड बी रेगुलेटिंग योरसेल्फ.
क्या मेरे गुस्से से मेरा नुकसान, सामने वाले का नुकसान हो रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज realization that yes, I'm experiencing this emotion. What is the next step? How should I regulate myself? Should I be speaking to someone, class teacher, friend, parent, counselor? किससे बात करूं? कुछ इसका सोल्यूशन निकल सकता है? कोई सोल्यूशन नहीं है। एक बार अपने आप को इंस्टेंटली काम करने के लिए वी टीच डिफरेंट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। डीप ब्रीदिंग हो गई, ऐसे हमको बटरफ्लाई, टू मेक इट हम्म इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन, बटरफ्लाई ब्रीदिंग, ऐसे रेनबो ब्रीदिंग। तो दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। उनको एक सर्कल टाइम पे बिठा के वी टीच देम डिफरेंट टेक्निक्स। सो एससीएल क्लासेस हम उनकी लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रेगुलर पेरेंट मीटिंग। पेरेंट जहां जहां जो हमारे पास बच्चा आ रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी इन्फॉर्म द पेरेंट ऑल्सो that your child is coming to us with these concerns and we want your support also. इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी अगर पेरेंट की साइड से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मे भी हो सकता है हमारा काउंसलिंग 100% हेल्प ना करे बच्चे को। कोई भी हम ट्रीटमेंट एक्शन ले रहे हैं, सब जगह से अगर उसको फॉलो किया जाएगा सो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सो वी हैव रेगुलर पेरेंट मीटिंग्स ऑल्सो। अच्छा, टीचर से भी बात होती है, वी कीप अपडेटिंग द टीचर कि आप क्लासरूम सेटअप में फॉर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अडॉप्ट। टीचर से भी हम लोग बात करते रहते हैं रेगुलरली। वी डू द डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑल्सो सो दैट मुझे पता हो कि 5 महीने पहले ये बच्चा मेरे पास आया था, इफ ही इज कमिंग बैक अगेन, हो सकता है मुझे उसकी 80% इंफॉर्मेशन आई डोंट रिमेम्बर, सो आई हैव दैट रिकॉर्ड विद मी। ठीक है, आई कैन गो बैक कि हाँ ये बच्चा था, ये कंसर्न से आया था, लेट्स सी हाउ इज डूइंग नाउ। वी हैव रेगुलर मीटिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑल्सो। उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल को पता होना चाहिए स्पेशली साइकोलॉजिकल कंसर्न है बच्चा फेस कर रहा है, जिसकी हमारे पास साइकोमेट्रिक रिपोर्ट्स आती है, जैसे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है। तो वो रिपोर्ट्स हम उनके साथ भी डिस्कस करते हैं। वी ऑल्सो डिस्कस कि हमारे एज पर सीबीएसई नॉर्म्स दीज आर दी एग्जाम्पशंस दैट दीज चिल्ड्रन विल बी गेटिंग। तो उनके लिए अलग से हम सेपरेट इंतजाम करके रखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स में उनका कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्या हम एज काउंसलर्स कैन बी रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चंस फॉर देम। सो दीज आर दी एग्जाम्पशंस दैट दी स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग। ये रोल होता है काउंसलर का। एंड बहुत understood. सारी चीजें होती है विच इज अनडिफाइंड एज पर द चैलेंज। कुछ भी चैलेंज Hmm. आता है तो उस टाइम हम देखते हैं कि क्या करना है। Right, because I believe SOS के लिए school counselors are immediate responders, especially हम्म। whenever anything happens to a well-being of a human being that is around a school campus or inside हम्म। the school campus. So I believe school counselors are the first one to get to know कि हाँ, this is negative and how to help. So राइट। I believe that's very important, and every school should have that. हम्म। Right. So going further, let's talk about a movie जो काफी ज्यादा चली थी, तारे जमीन पर. हम्म। Right. So कभी भी हम स्कूल काउंसलर्स की बात करते हैं, लोगों को लगता है अच्छा आमिर खान, तारे जमीन पर मूवी. So yeah, let's talk about that. So um, क्या वैसा ही एनवायरनमेंट होता है स्कूल्स का, एंड क्या वही रोल होता है स्कूल काउंसलर्स का जो मूवीज दिखाती हैं, या लेट्स टॉक अबाउट तारे जमीन पर एज अ स्पेसिफिक मूवी. तो क्या था एग्जैक्टली ईशान को मूवी के अंदर, एंड उसे जो डिफिकल्टीज आई थी क्या वो नॉर्मली स्टूडेंट्स को आती है? राइट, सो ईशान को इस मूवी में लर्निंग डिसेबिलिटी थी एंड स्पेशली डिसलेक्सिया। राइट, तो जो जो वो कंसर्न सिम्टम्स उसको दिखा रहे थे, दैट आई रिमेम्बर उसका स्पोर्ट्स क्लास थी स्कूल में, टीचर ने बोला चलो एक बॉल कैच करो एंड ही वाज नॉट एबल टू डू दैट। तो जो उसमें दिखाया था व्हाई ही वाज नॉट एबल टू कैच द बॉल, उसको पता ही नहीं चल रहा था कितने डिस्टेंस पे बॉल आ रही है, कितने सेकेंड्स में मेरे पास पहुंचेगी। जब तक ये सब वो एनालाइज करता बॉल,
आ चुकी होती थी एंड ही यूज्ड टू मिस कैचिंग द बॉल, राइट। तो जो उसमें सिम्टम्स दिखाए गए थे एक्चुअली बच्चे फेस करते हैं। जो वो बोल रहे थे ना, डांसिंग लेटर्स आते हैं, लेटर्स आर डांसिंग व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम टू रीड अ पैराग्राफ, ही वाज नॉट एबल टू रीड। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हाँ, जो लेटर्स है, लेटर रिवर्सल हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल 6 9, B D, ठीक है, जैसे बैक को वो लोग डॉग भी रीड कर सकते हैं क्योंकि वो लेटर रिवर्सल हो रहा है उनका, राइट। सो जो ये सिम्टम्स उसमें दिखाए गए वो एक्चुअल में फेस करते हैं। आमिर खान बीइंग एन आर्ट टीचर इन दैट मूवी, एग्जैक्टली काउंसलर का वो रोल होता है। आमिर खान ने क्या किया, बच्चे को ऑब्जर्व किया, उससे बात करने की कोशिश की। He went up to the parents also and he shared his observation, क्योंकि पेरेंट को अभी तक पता ही नहीं था। सी, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उनको नहीं पता होता कि हाँ बच्चे के साथ शायद कुछ चल रहा है। अकेडमिक्स का फिर भी पता चल जाए, बट नॉन अकेडमिक चीजों का शायद ना पता चले जो उनके साथ हो रहा है, राइट। सो एज अ काउंसलर वी ऑब्जर्व देम एंड शेयर द फीडबैक विद द पेरेंट, राइट। और उसमें आमिर खान ने क्या किया, उसका बेस्ट निकाला, बेस्ट उसकी स्किल निकाली, राइट। सो ही वाज नॉट गुड विद एकेडमिक्स, तो एक तो एकेडमिक्स में उसको कैसे हम स्पेशल अटेंशन देके, टाइम देके उसके बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। ही स्टार्टेड विद दैट। नंबर 2, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल था विच वाज आर्ट। तो उसके आर्ट को एनहांस करा एंड इन स्कूल ही हैड वन दैट कंपटीशन आल्सो। सो हमारा भी एज स्कूल काउंसलर्स यही रोल होता है कि अगर ठीक है आपका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स में आप अच्छे नहीं हो तो आपका कुछ आगे करियर ही नहीं है, नहीं। यू हैव वेरियस ऑप्शंस नाउ, यू कैन ग्रो इन एनी फील्ड। सो यू हैव टू टेक आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड। Right. So, when we talk about तारे ज़मीन पे मूवीज, तो उसमें एक और सिनेरियो पोर्ट्रे किया था जहाँ पे, if I'm not wrong, ईशान was feeling inferior because of his brother, क्योंकि comparisons element काफी आ जाता था पेरेंट्स की साइड से राइट, कि ये राइट। वाला बेटा काफी अच्छा कर रहा है, ये वाला बेटा इधर ही रह गया. So, how about emotional impact that children used to face, especially in their early days, out of comparison? राइट। सो सी, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। कंपैरिजन पेरेंट क्यों करते थे, क्योंकि पेरेंट को लगता था ईशान तो पढ़ता ही नहीं है, वो क्या करता है, खेलता रहता है, विंडो से बाहर देखता रहता है, डिस्ट्रैक्टेड है, राइट। वो पढ़ता नहीं है एंड हिज एल्डर ब्रदर यूज टू स्टडी, वो फर्स्ट आता था और ये फेल होने की इसकी हालत होती थी। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पता ही नहीं था डिसलेक्सिया नाम की कोई चीज भी होती है, राइट। सो इसलिए हम साइको एजुकेट भी करते हैं। साइको एजुकेशन मीन्स टॉकिंग अबाउट और स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। जब एक अवेयरनेस आ जाती है हाँ कि ऐसी चीज भी पॉसिबल है, एंड इट इट हैज नथिंग टू डू विद जीन्स बट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, राइट। उसको ठीक भी किया जाता है, नॉट 100% बट यस काफी हद तक वो चीज मैनेज हो सकती है। कितने कितने फेमस फिल्म स्टार्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई है बट दे आर डूइंग वेल इन देयर करियर्स। अमिताभ, सॉरी, अभिषेक बच्चन को भी डिसलेक्सिया था व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, बट क्या वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए? Right, and even I want to plug in one major thing. The person that I am very inspired from, especially from my early days, and he is my idol. When you look towards empire building or business acumen, and he's Richard Branson. And हम्म, Richard Branson have his own Virgin Group that includes Virgin Airlines, your hotel chains, and a lot of things. He have a whole empire, and he stated that and publicly communicated कि उसे भी था, हम्म। right? उसे भी dyslexia था, and he was not able to learn and write thing properly. अगर आप उसे thought लिखने को बोलते हो वो नहीं लिख पाएगा. I'm not राइट। aware about the current situation, but that what he faced throughout his life, and हम्म। he's the billionaire today. So इमेजिन, इमेजिन। right, so that's the point. Like you can't say कि ये यार ये तो हो गया, ये थोड़ा सा
लाइक अब काफी आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा राइट कुछ भी नहीं है। राइट, ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है एंड राइट। आप कर सकते हो चीजें, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। So now let's jump towards the importance of psychologists again in school and universities. So जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि काफी एज ब्रैकेट्स के ना डिफरेंट इश्यूज होते हैं, राइट। right? तो वो क्या क्या इश्यूज हैं और पेरेंट्स को क्या अवेयर होना चाहिए कि ये इश्यूज आने वाले हैं, so that they can be prepared and they can, you can say, they can realize this कि these things we should not do or these things we can communicate to child so that he will be emotionally safe. राइट राइट। अच्छा, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो यूजुअली क्या होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में व्हेन द चाइल्ड इज स्टार्टिंग स्कूल। सो इन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोलॉजिस्ट आर आस्क्ड टू टेक अ सेशन ऑन पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग में मतलब स्पेशली मेरा क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु विल बी ज्वाइनिंग स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको सेपरेशन एंजाइटी होती है बिकॉज डेफिनेटली दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। बट जब आगे थोड़े दिन के बाद आफ्टर अ मंथ लेट्स से थिंग्स आर नॉर्मल एंड बच्चा एडजस्ट हो गया, स्कूल में सब कुछ हो गया है, पेरेंटिंग में क्या है, इज द चाइल्ड फीलिंग सिक्योर्ड विद यू एज अ केयर गिवर, एज अ पेरेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एंग्शियस होता है, ये लगता है हमें हमें लगता है यार बच्चा शाय है, हमसे नहीं शेयर कर रहा कुछ भी, ठीक है ये कम बोलता है, इट्स ओके, बट यू नीड टू सी बच्चा आपके साथ सिक्योर फील कर। बहुत बार होता है इसी चाइल्ड 3 और 4 इयर्स ओल्ड, पता ही नहीं उनका, उनको इतना कुछ नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, हमें ये चीज कैसे एक्सप्रेस करनी है नहीं पता होती, राइट। एंड आगे जब वो थोड़े बड़े होते हैं पता चलता है कि उन्होंने वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल ही नहीं अपने पेरेंट्स के साथ फॉर्म किया। उनका पेरेंटिंग स्टाइल हो सकता है, एज अ पेरेंट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, एज अ पेरेंट आई एम टू ऑक्यूपाइड टू लिसन टू माई चाइल्ड। मुझे लगता है बच्चा क्या शेयर कर रहा है, स्कूल में फ्रेंड्स की बात कर रहा है या ऐसे अपनी गेम्स की बात कर रहा है, एंड यू नो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट, है ना, टू लिसन टू। तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही, सो अवॉइडेंट अटैचमेंट हो गया, एक एंशियस हो गया कि अगर बच्चे ने कुछ भी गलती करी आई रिएक्ट वेरी क्विकली। अब क्या है ना, बच्चा वो सीख रहा है, अच्छा जैसे मान लो आई एम गोइंग टू अ सुपरमार्केट, वहां पे माई 3 year old इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, मम्मा आई वांट दिस ऑल्सो, मम्मा आई वांट दैट ऑल्सो, एंड आई Hmm. एम गिविंग हर अ लुक, वैसे बड़ी बड़ी आंखें करके उसको दिखा रही हूँ। बच्चा क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाएगा, एंड नाउ वो चुप हो गया ना, मैं सबको बोल रही हूँ, अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, देखो ये तो चुप हो गई है, राइट, शी इज नॉट डूइंग इट नाउ। Ultimately, the child is learning whatever discomfort I am experiencing, मुझे वो शेयर ही नहीं करना है ना। मैं रेगुलेटेड हूँ, शांत हूँ, तब ये लोग मेरी प्रेस कर रहे हैं। मैं कुछ मुझे कोई भी अंदर डिस्ट्रेस हो रहा है, लेट एज अ चाइल्ड हो सकता है उसको भूख लग रही हो, उसको नींद आ रही हो, उसको बोरिंग लग रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बट यू आर टीचिंग योर चाइल्ड डू नॉट शो अस योर नेगेटिव इमोशन, बाहर सबके सामने अंदर जो भी चल रहा है यू हैव टू बिहेव वेल। तो बच्चा क्या है ना, धीरे धीरे शाय एंशियस में कन्वर्ट होता, हमें लगता है शाय है बट उसकी एंशियस पर्सनालिटी बनती जाएगी। सो एज अ काउंसलर यू हैव टू एजुकेट पेरेंट्स कि उस टाइम अगर बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, हाउ यू कैन रेगुलेट हिज इमोशंस, हाउ आप उसको सिक्योर कैसे फील करवा सकते हो, वैलिडेट करो बच्चे को कि हाँ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस राइट नाउ, मे बी एक उसको सेफ टच से यू कैन हग योर चाइल्ड एंड यू कैन काम हिम डाउन, शॉपिंग फॉर सम टाइम, स्टॉप योर शॉपिंग फॉर सम टाइम, एंड देन कंटिन्यू विद दैट। बच्चे को उस टाइम कंफर्टेबल फील करवाना जरूरी है, राइट। एंड अच्छा, Okay. आपने डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में बोला था, सो Mhm. प्राइमरी में हम साइको एजुकेट करते हैं, जैसे ये बात हुई हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी, जो भी अकेडमिक रिलेटेड एंड बिहेवियरल कंसर्न्स आते हैं उसका क्या। एंड अब तो और भी इम्पोर्टेंट चीजें आ गई है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सो हाउ टू कीप योर किड्स सेफ, उनको फोन देना है, कितना देना है,
क्या क्या आपको फोन में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड बी अवेयर ऑफ, कितने अब इश्यूज आ रहे हैं। सी मे बी एज अ आई मीन ग्रेड 8 एंड आई फील आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, तो चलो मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ ऑनलाइन, वो हम्म। मुझे नहीं देख रहा, मैं उसको राइट। नहीं देख रही हूँ, वी वोंट बी एबल टू जज ईच अदर, आई एम गेटिंग कंफर्टेबल विद दैट पर्सन एंड आई डू नॉट नो हु दैट पर्सन इज, राइट। सो ये वाली चीजों के बारे में एजुकेट करना, देखना अब तो बहुत जरूरी हो गया। फैमिलीज आर बिकमिंग स्मॉलर, घर में बस पेरेंट्स है, एक या दो बच्चा है, ठीक है, पेरेंट्स भी बिजी है विद देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, तो बच्चे क्या है इसी को अपना सिक्योर बेस मान देते हैं। राइट, सो इस चीज में आई वांट टू कम्युनिकेट वन थिंग। या Many people I meet nearly daily used to हम्म communicate about extrovert and introvert हम्म characteristics that they have, and they also communicate that childhood का काफी उस पर रोल था। तो क्या ये एक्चुअली में ट्रू है कि चाइल्डहुड में, जैसे आपने कहा, कि अगर उन्हें सपोर्ट दे दिया जाए कुछ टाइम के लिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड को अगर रोक के उनको वैलिडेट किया जाए, सो हम्म वो थोड़े ओपन अप होंगे, वरना हम्म वो अंदर ही अपनी फीलिंग्स दबा के थोड़े एंजाइटी में रहेंगे, थोड़े एंशियस रहेंगे। सो क्या हम्म इंट्रोवर्ट बनने में भी इमोशन सेपरेशन का एक रोल है, और वो आपका ट्रेट ही बन जाता है लाइफ लॉन्ग, या फिर जो ज्यादा वैलिडेशन जिसको मिलता है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट बच्चा निकलता है आगे जाके अपने पूरी लाइफ वो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है? एग्जैक्टली एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, या एग्जैक्टली ये चीजें राइट, इंपॉर्टेंस होती भी है कि नहीं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा पूछा ईशान। सो पहले ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये एक अपने आप में ही पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इस बहुत ज्यादा इसका हमारे जीन्स का भी रोल आता है, ठीक है, आप एज पेरेंट्स आप दोनों कैसे हो, राइट, प्लस आपके एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। सो मान लीजिए एज पेरेंट्स मैं खुद ही हूँ जो कम बोलती हूँ एंड मेरी लोगों से भी कम इंटरेक्शन है, वो एक्सपोजर ही नहीं है। सो द चाइल्ड इज सेइंग कि हमारे घर कोई आता जाता इतना नहीं है, घर पे भी हम आपस में इतना नहीं बोलते, सो दैट इज वन थिंग ही इज ऑल्सो लर्निंग। एक जीन्स में भी थोड़ा सा उसके था, बट देन व्हेन ही केम आउट एंड ही इज ऑब्जर्विंग हिज सराउंडिंग्स, इमीडिएट सराउंडिंग्स, घर एक अपना इमीडिएट सराउंडिंग है, व्हेन ही इज ऑब्जर्विंग दैट आल्सो, तो उसका भी एक ऐसे पर्सनालिटी फॉर्म होने लगती है कि हाँ ठीक है, मे बी वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड तब आपको बोलना है, बट देन देर इज अ डिफरेंस, कम बोलना एंड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। मेरा मम्मी पापा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, चाहे हम लोग इतना नहीं बोलते हैं, बट दैट कनेक्शन इज देयर। उन लोगों को कुछ पूछना होता है, बताना होता है, दे डू दैट विद अस। हमें कुछ बोलना होता है, कुछ अपने कंसर्न शेयर करने या नॉर्मल बात भी करनी है, दे आर लिसनिंग टू मी, सो आई फील कनेक्टेड विद देम। तो मुझे पता है मुझे आज कुछ प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, दे विल बी देयर टू लिसन टू मी एंड गाइड मी, राइट। जब लगता है कि हाँ पेरेंट्स भी वैलिडेट नहीं कर रहे हैं या मुझे नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है हाँ मैं सप्रेस करूं, या वो पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, मैं मुझे अभी किसी बात पे गुस्सा आ रहा है एंड मैं खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, हो सकता है वो रिएक्ट करें, देन व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री। तो मेरे इमोशंस को नहीं देखा गया कि मैं क्या इमोशन फील कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये जानने को जरूरत नहीं समझी, पता ही नहीं है तो हर रोज ऐसे करती रहती है, इसको क्या हो जाता है, दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इज देयर। सबके सामने बोल देते हैं ये तो हर रोज ऐसे करता है, ये तो लड़के तो होते ही स्पेशली ऐसे नाक में दम करके रखते हैं, इफ दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इज कमिंग अप, तो बच्चा फिर जब धीरे धीरे बड़ा होगा उसको समझ में आएगी, वो बोलेगा नहीं इनसे नहीं बोलने का फायदा क्योंकि ये मुझे समझेंगे नहीं। So there is a different introvert they can express themselves और extrovert वाले बच्चे हैं वो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करे। Right, I was reading this about leadership. There are many leaders, um, like throughout.
their life, they were introvert, Hmm. but when they are doing leadership, everybody feels like they're extrovert. So Hmm. this is a fact that many leaders came out and stated this as well. When they were in school, colleges, in their early stage of life, they were not matching the mental capability of Hmm. with other students. For example, other students were asking questions Hmm. that he already know answer about, or he or she already felt like यार ये बेकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मैं किसी और के बारे में बात करना चाह रहा हूँ या किसी और के बारे में बात करना चाह रहे हैं या फिर मेरे इमोशंस वैलिडेट नहीं हो रहे हैं ना लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल जिसके Hmm. बाद वो बात नहीं करते थे इतना इसलिए लोग Hmm. उन्हें इंट्रोवर्ट समझते थे but when Hmm. they came out in their corporate Hmm. life when they Hmm. started uh, winning it can be launching their own products company या फिर be an athlete whatever they thought in their mind at those times when they executed that they Hmm. started talking about it they started talking with people about it and people thought that they are now extrovert personality बदल गई trait बदल गया they are omnivore they are giving random names to it कि यार ये तो हमारे सामने बोलता नहीं है वहां जाके बोलता है so Hmm. Hmm. what exactly you want to communicate to it ऐसा होता है कि जो स्कूल या यूनिवर्सिटीज में इंट्रोवर्ट हो वो आगे जाके एक्सट्रोवर्ट निकल जाए या फिर जो एक्सट्रोवर्ट है वो आगे जाके थोड़े शांत हो जाए how it is Okay. See, तो complete personality change नहीं होती है, right? So introvert, extrovert, it's a personality characteristic. Completely change नहीं होता है. आपका environment, आपकी जैसे आप कह रहे हैं वो अपने corporate life में आए and they started speaking there and उनको extrovert बोला गया. उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. So let me give an example. So I know this one person who went from a very mediocre school to a very lavish school. बहुत अच्छे स्कूल में गए. ठीक है, मतलब मान लो गवर्नमेंट से अच्छे प्राइवेट स्कूल में गए. सो दैट चाइल्ड वाज अ कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट. अब लैविश स्कूल में गया, वो वहां पे चुप हो गया. क्यों? पीपल वर टॉकिंग इन इंग्लिश, दे वर टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, एंड उसको कुछ पता ही नहीं था. राइट. सो वो मतलब उसको फील हो रहा था, hmm यार मैं कहाँ आ गया, क्या हूँ, मैं इनसे क्या बात करूं, ये जो भी बोलते. सबसे पहले अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो ये लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, यार इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है. ठीक है, फिर ये हमेशा बोलते हैं मैं यहाँ घूमने गया, वहां घूमने गया. सो दैट चाइल्ड वाज नॉट फीलिंग कि मैं एक, उसको लग रहा था अलग ही दुनिया में आ गया हूँ. मैं पहले क्या बात करता था, एंड एज चिल्ड्रन वी वर प्लेइंग ऑल टाइम एंड अपने मस्ती मजाक में रहते थे. यहाँ मैं एकदम कंप्लीटली अलग एनवायरनमेंट में आ गया हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ. सो नाउ दिस चाइल्ड इज गेटिंग एक्सपोज टू अ completely डिफरेंट एनवायरनमेंट. धीरे धीरे दिस इज a real life story that I'm sharing. ही लर्न कि हाँ चलो उसकी इंग्लिश भी बेटर होने लग गई. काफी पता भी चलने लग गया कि हाई क्लास के जो लोग होते हैं वो किस बारे में बात करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं. एक वो पर्सनालिटी चेंज आया. सो नाउ व्हेन दिस चाइल्ड वाज इन ग्रेड 9th एंड 10th, he at least end up making 2 to 3 गुड फ्रेंड्स जो उसके मन के थोड़े उसके टाइप के थे. एंड अब वो इंग्लिश में भी बात करने लग गया था, सब कुछ करने लग गया था. राइट. एंड करियर में भी फिर उसका ग्रूम हुआ. क्यों? क्योंकि उसने दोनों टाइप के स्फेयर्स देखे. जहाँ पे कुछ भी नहीं था एंड स्टिल ही वाज एन एक्सट्रोवर्ट, एंड जहाँ पे सब कुछ था, गुड एक्सपोजर था, बट टेम्पररी ही बिकेम एन इंट्रोवर्ट. एंड बट देन जो absolutely ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक रहता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अपने साथ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आप किसके सामने खुलना चाहते हैं, किसके सामने नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. राइट. इट मतलब ऐसा प्रेशर प्रेशर वाली चीज से नहीं कर सकता आप किसी को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट. so agree upon this particular point even many uh, leaders actors athletes and a lot of you can say other profession people as well is to communicate the importance of psychology in their life या. so या.
Even recently in one unfiltered podcast, there is a podcast known as Unfiltered by Samdesh. Samdesh and Farhan Akhtar talked about the importance of therapy. Like I love when men talk about therapy, to be honest, Hmm, hmm, right? Because the ratio is very different. hmm, Females used to accept therapy much more earlier as compared to hmm. men. That's why ratio is very drastic. So Yeah, I yeah. love when I love when men talk about therapy and acceptance about it. So True, true. they also talked about it. And when you are getting the nourishing seed of you can say therapy, when you are in your early stage of life and you are getting that emotional support, getting that guidance, getting that school counselors and somebody to talk to, you will feel very because it's safe and your child True. will feel very safe. And even parents in India are very, you can say, emotional in terms of their child. They are ready to invest more than 80% of their wealth to just fund the child's education and initial lifestyle. 100%, 100%. Right. So if anybody watching from a management of schools, or you can say somebody who is already in manager position of the school management, I want to communicate this to you that hire school counselors and let them do their job Right, because right. in businesses, I come from a business side, right? So in businesses, user experience matters the most and the user journey matters the most. And your user or your consumer is a child who is Hmm. taking admission for any of the classes, can be prep for second, third, or 10th, 11th, 12th. He is your user and consumer. His journey will be much more supportive and his experience will be immensely good when a school counselor is present there and he can or she can go to that human being anytime whenever he or she is feeling unsafe. The experience and True. journey will be much more smoother. And your school will be winning when user journey is good. So that's the fun Absolutely, that absolutely. school counselors are amazing in terms of helping students. So you can immensely grow user journey and experience in this particular field. So Shweta, any last you can say note that you want to give to parents and school management, principals, teachers about importance of school counselors or anything that you want to communicate? Right. So firstly, I would say please every school, अगर कोई स्कूल है which is not in Delhi and CBSE का नहीं वहां पर नॉर्म फॉलो हो रहा है that every school should have a school counselor, but then तब भी please have a counselor in your school. हम देख रहे हैं आमिना ईशांक आपने भी सुना होगा so many cases are coming up. बच्चे हैं कर रहे हैं वो कौन सा आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे कोरियन गेम्स खेल रहे थे एंड दीज थ्री गर्ल्स कमिटेड मतलब कितना कुछ हो रहा है उनके माइंड में बहुत टाइम से कुछ तो चल रहा होगा दैट मेड देम टेक दिस स्टेप right? So it is not just about academics, it is not just about their behavior. अभी presently हमें उनके इमोशंस को देखना है, उनकी इमोशनल नीड को हमें सपोर्ट करना है, रीडायरेक्ट करना है. उसके लिए प्लीज गिव टाइम टू योर काउंसलर्स. ऐसा मत कीजिए कि हाँ हम उनको सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ काउंसलर आप उनसे और चीजें भी करवा रहे हैं, राइट? ये बहुत जरूरी है कि हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट हो जो जिनका बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन हो, राइट? दूसरा, वन मैसेज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो दैट प्लीज आप भी बच्चों का ध्यान रखिए. स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम वेन एवर पॉसिबल. हर रोज 10-15 मिनट्स बात करना. मोस्ट ऑफ द टाइम पता है हमें एज पेरेंट्स लगता है हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. मैम मैं तो उसको होमवर्क करवाती हूँ, मैं उसको खाना खिलाती हूँ, मैं उसके साथ खेलने जाती हूँ. सी रिमेम्बर यू आर डूइंग योर ड्यूटीज वेल. आप खाना खिला रहे हो,
आप उसको उसकी बॉडी नरिश कर रहे हो, आप उसको खिलाने लेकर जा रहे हो, उसका आप ध्यान भी रख रहे हो डेफिनेटली। बट देखो वन ऑन वन कनेक्ट हो रहा है, होमवर्क वगैरह सब कुछ साइड करके वे जस्ट द टू ऑफ यू आर टॉकिंग, प्लीज चेक वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, बिकॉज दैट इज द टाइम जब बच्चा हो सकता है आपसे कुछ शेयर करे, आप बच्चे के साथ कनेक्ट फील करें। और यू नेवर नो, बच्चा कुछ ऐसी चीज शेयर करे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसका कुछ मे बी सपोर्ट उसको नीड हो, उसकी आप हेल्प करें, राइट? सो डू कनेक्ट विद योर चिल्ड्रन ऑन डेली बेसिस। अभी से आप वो हैबिट बिल्ड करेंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा, ही विल फील दैट हाँ, मतलब माई पेरेंट इज वन थिंग, चाहे कुछ भी हो मैं उनके पास जा सकता हूँ, सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे लोनलीनेस भी हो रही है, या अगर मेरा कोई रिलेशनशिप इशू किसी के साथ चल रहा है, सो इफ आई डिस्कस विद देम, सो मे बी दे विल बी एबल टू सपोर्ट मी। वो मुझे बताएंगे मैं अपने इमोशनल रेगुलेशंस को मैं कैसे, अपने आप को, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकता हूँ। So please, I mean, that is one thing that I would like to say. Connect with your children. Talk about child safety, child abuse with them. Schools में mostly schools में बात होती है. As parents also we should be talking. सब पर, even if they are family members, support staff, blindly trust नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि आजकल Right. क्या क्या हो रहा है. So thanks a lot, Shweta, uh, to be here. And I believe school management, parents, children, teachers, and school counselors learn a lot about school counselors, plus what exactly school counselors are and on their day-to-day life. We discussed a lot of things, and I believe the audience will learn the importance of school counselors after this. That right, right, right. Thank you, Shank, for having me and for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you, Shweta.